है, जिसका ये उद्देश्य रहा है कि अपनी इंडस्ट्री की जो वर्कफोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए विद द हेल्प ऑफ पाठशाला। हम बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं और हमारा यही इंटेंशन है कि सारे जो बिजनेस के अंग है उसके लिए हम उनको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दें। आज 5th सेशन में पहली बार हमने संडे को किया है, क्योंकि इतने हफ्ते हम वीक में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करते थे। काफी लोगों ने कहा कि संडे और मंडे कीजिए, तो आज हमारा पहला प्रयोग है संडे करने का ये। और आज का हमारा विषय है टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने ग्राहकों से बेहतर रिश्ते बनाएं, इम्प्रोवाइज्ड कंज्यूमर एंगेजमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। और आज के हमारे ट्रेनर है करिश्मा नागपाल, शी इज डायरेक्टर ऑफ वर्चुअल डायमंड बुटीक, एंड मिस्टर प्रशांत मोरे, आप दोनों का स्वागत है। और इन्हीं के साथ आज हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि दो बड़े ही दिग्गज व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री की, मिस्टर ईशू दत्वानी फ्रॉम अनमोल ज्वेलर्स और मिस्टर हिमांशु शेखर। हिमांशु जी हमारे पहली एक पाठशाला में आ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पाठशाला में आए। और मैं चाहूंगी हिमांशु जी आप हमारे पाठशाला के इस उपक्रम के बारे में कुछ कहे और हमें आपके ज्ञान के कुछ मौल्यवान चीजें बांटे। Very good, India. Should I start? Yes, sir. Okay. Thank you, Kranti ji. And first of all, let me congratulate the organizers committee and the organizers people, Mr. Manoj Jha from Kamakya, Mr. Sumit Somalia from Uma Ornaments, and you yourself, Kranti Navgaker from KNC Service, and especially for managing all these events so flawlessly. Very nice. I have seen almost most of them, and a special thanks to the trainer, Mrs. Karishma and Mr. Shamor. As last time also I said, this is a very selfless service to the industry, especially in these days when everybody is in fear of uncertainty, and there is nothing much you can do outside. So what you can do is enhance your own personal skills, and you sharpen yourself sitting home. So this is a very, very good initiative, and all the topics which you have selected so far are very, very relevant. So first of all, I would like to this improvised consumer engagement using technology. So I would like to explain and each and every word. What does improvised mean? What consumer mean? So improvised is different from improvement. Improvised is when you have a situation and when you are already given your resources to deal with the situation, and then at that time spontaneously and in a very instant manner, when you start to cater to the situation, that is improvised situation. So that's very nice, because new resources are not easy to come by. So we have to learn to make do and manage within the resources given to us. So next is consumer. So in consumer, I would everybody knows that what is a prospect, what is a consumer, what is a client. But next is that what is the person who has come into the store as a footfall, as a visitor. So you have to first of all find out what kind of personality does he have. So we always what we practice, what I've learned in these years, that there are primarily even through psychology also, there are 4 kinds of people or the personalities. So to say that there are people having emphasis, या मैं अभी हिंदी में भी बोलना चाहूँगा कि किस चीज का उनके पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में क्या चीज भारी है। 4 चीजें रहती हैं। एक रहता है कि वो कितने असर्टिव हैं, अपनी बात पे कितने जुटे रहते हैं। दूसरा रहता है वो कितने लॉजिकल हैं।
तीसरा रहता है वो कितने इमोशनल है, और चौथा रहता है वो कितने लेस असर्टिव हैं या मोर असर्टिव हैं, मोर लॉजिकल हैं या लेस इमोशनल हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन हर एक में रहता है। तो यहाँ जो समझने की बात है कि मैं भी वो चारों में जो मेरा भारी है हिस्सा वो एक है, बाकी तीन भी मेरे अंदर थोड़े थोड़े हैं पर एक हिस्सा मेरा भारी है। इस बात को मुझे समझना होगा कि अब मैं जब डील करने निकला हूँ कंज्यूमर से, तो पहले इनकी पर्सनैलिटी टाइप मेरे को फाइंड आउट करनी होगी। जो लोग होते हैं बहुत असर्टिव, जो अपनी बात पे जुटे रहते हैं, और होते हैं बहुत लॉजिकल, वो किसी की नहीं सुनते। वो आपकी बात जो समझ लेंगे ठीक है, वो बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में नाम दिया है ड्राइवर्स। दे ड्राइव देयर वैगन देमसेल्व्स। वो एट द हेम ऑफ द अफेयर्स में रहते हैं, और ज्यादातर मेल जेंडर में इस तरह की डोमिनेंस पाई जाती है। और जिस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं उसमें ड्राइवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने दम पे ही अपनी जिंदगी को जो भी बनाया है और उसके बाद जो वेल्थ इकट्ठी करी है, उसके बाद उस वेल्थ को गुड यूज करने के लिए हमारे स्टोर्स में आते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये आदमी का ये एक ट्रेट रहता है कि वो आपकी सुन लेगा थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो उसने बोला है उसके ऊपर ही एंड तक अटका रहेगा। इसको भी कैसे ब्रेक करते हैं उसके बारे में भी बहुत थोड़ी सी बात करेंगे। फिर दूसरे हैं जो कि मोर असर्टिव हैं पर मोर इमोशनल भी हैं। वो लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बोलते हैं, वो अपनी बात पे रुकेंगे पर वो बोलेंगे। जो ड्राइवर्स हैं वो बोलेंगे नहीं, वो लॉजिकल ज्यादा हैं, ये इमोशनल ज्यादा होते हैं। और तीसरे हैं मोर लॉजिकल एंड लेस असर्टिव। ये लोग एनालिटिकल होते हैं, इनको आप डेटा देते रहो, इनको इन्फॉर्मेशन देते रहो, सब कागज लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे, खूब सारी रिसर्च करेंगे, और ये एनालाइज करेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो कितना ठीक है कितना गलत है। और चौथे होते हैं एमिएबल। एमिएबल में मोर इमोशनल एंड लेस असर्टिव। इसमें ज्यादातर लेडीज फोक्स इसमें फॉल करती हैं। तो इन चारों में से जो हमारे अंदर पर्सन आए हैं वो कौन से हैं, और उस हिसाब से हमें अपनी पिच को चेंज करना होता है। वो ट्रेनिंग का पार्ट है। हमारी पूरी सेल्स टीम को ये ट्रेनिंग रहती है कि अगर कोई ड्राइवर है तो उसके साथ तो पानी बन जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, आप ही को उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। तो और एक और गोल्डन क्लासिक रूल है कि अब और लोगों से वैसा व्यवहार करिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपसे व्यवहार करें। पर इससे अगला एक प्लैटिनम रूल है कि और लोगों से वैसा व्यवहार करिए जैसा वो चाहते हैं आप उनसे व्यवहार करें। क्योंकि सेल्स अल्टीमेटली तो हमें कस्टमर को ही सेंटर स्टेज पे रखना है ना। तो जो भी रेलेवेंट टच पॉइंट्स हैं वो बनाएं, देखें, मिलें, उनका रेस्पॉन्स देखें, उनकी रीजनिंग देखें। और ये साइंस है जो इन एनी केस एक बिजनेस ओनर ये इसको नोइंगली अननोइंगली करता ही है। पर जो हमारी सेल्स टीम है जिसके लिए ये काम होता है, जो ये पाठशाला का काम, मैं उनके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। इस बात को समझें कि जो आज मेरे सामने पर्सन आए हैं वो ये इन चारों पर्सनैलिटीज में से कौन सी पर्सनैलिटी उनकी भारी है, और उस हिसाब से मैं अपने आप को मजबूत करूँ। अगला बात है अब इम्प्रोवाइज कंज्यूमर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के दौरान आपको क्या करना है? एंगेजमेंट में आपको दो ही चीजें क्रिएट करनी है। एक क्रिएट करनी है ट्रस्ट, और दूसरा क्रिएट करना है आपके ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू को ऊपर लेके जाना है। अब ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? ट्रस्ट जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो एक होता है रैपो क्रिएट करना, उसके बाद क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना। जब ये दोनों चीजें क्रिएट हो जाती हैं तो फिर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। रैपो क्रिएट करने में नॉर्मल बातचीत होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर की। और जो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में मतलब यू मेक अदर पर्सन स्टार्ट टू हैव अ लाइकिंग फॉर यू, बिकॉज द वे यू आर स्माइलिंग, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर शोइंग कंसर्न, मे बी ऑन अ स्मॉल थिंग्स। तो वहां से रेपो बिल्ड होती है। उसके बाद फिर जो फिर क्रेडिबिलिटी आती है वो अब आती है जब आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में उनको आगाह कराते हैं, और very softly and very nicely in the right manner आप उनको बता दें कि आप वो लोग आपके पास आने की वजह से राइट हैंड्स में हैं। और इसके बाद फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है। और फिर ट्रस्ट में क्या है कि जो जैसे ऐसे तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और जो बिजनेस है, बिजनेस का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट। वो आपके पास ट्रस्ट से आए, कुछ ट्रस्ट वर्दी चीज लेने के लिए आपने वो ट्रस्ट दिया।
और फिर अगली चीज मैंने बोला कि परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू के लिए आपको जो आपकी जो ब्रांड प्रॉमिस है, जो आपका जो जो आपकी डिलीवरी का स्कोप है, वो आपको नॉट ओनली एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेन करने से पहले उसको बहुत अच्छे से डिटेल में जाके खुद समझना होगा। आपकी स्टोर के एक एक पर्सन को वो पता होना चाहिए कि मेरा ब्रांड प्रॉमिस क्या है, और जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है वो उस ब्रांड प्रॉमिस के ऊपर लगातार काम करता रहे। जब वो आपके स्टोर से उठ के सामने वाले पर्सन के पास चले गए तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मैं वहां से ये सामान लाया था और ये उसी तरह से चमक रहा है, या इसमें कुछ टूट फूट नहीं हुई, या ये अच्छे से पहनने में आता है, इसमें कुछ चुभता नहीं है, इसके जो भी आपने ब्रांड प्रॉमिस में अपना जो आप बाइबल लिखेंगे, जो भी आप मैनुअल लिखेंगे, उसकी एक एक चीज उसमें पूरी होनी चाहिए। तो ये जब दो चीजें करते हैं तब आपका जो प्राइस ऑब्जेक्शन है वो भी मिनिमम हो जाता है। क्योंकि आपने अगर जो ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करा है, हम कितनी सारी चीजों में जानते हैं कि जहाँ पे अच्छे ब्रांड की वजह से हम जानबूझ के भी ज्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये शर्ट खरीद रहे हैं तो ये अच्छी निकलेगी, इसका कलर ठीक निकलेगा। तो लाइकवाइज, तो परसेप्शन इज मस्ट, पर जो असली बात है वो है रियल वैल्यू। आपके प्रोडक्ट की रियल वैल्यू भी नहीं। परसेप्शन इज मस्ट बट रियल वैल्यू इज पैरामाउंट, वो सबसे ऊपर है। दैट इज द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ योर डिलीवरी। तो जो रियल वैल्यू है वो जरूर होनी चाहिए। एंड जो आपका जो परसेप्शन है वो बिल्ड होएगा। वो बहुत जैसे आप अपना ब्रांड मैनुअल बनाएंगे, उसमें एक एक चीज, कैसे स्माइल करना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे रिपेयर रिसीव करनी है, कैसे ऑर्डर रिसीव करना है, हर चीज से बनता है कि आप यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिव। अगर आप रेस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर मतलब फिर आदमी को ना डबल इंटरैक्टिव माहौल में ही अच्छा लगता है। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको सेल्स ट्रेनिंग में डालेंगे तो आपका एज अ बिजनेस ओनर आपका थोड़ा काम कम होगा, क्योंकि आपके सेल्स के लोग उस पायदान पे पहुंचने लगेंगे जहां पे दे ऑल्सो विल हैव कस्टमर्स जो एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को ही पूछते हुए आते हैं। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम कंज्यूमर और एंगेजमेंट की हम बात कर रहे थे। और उसके बाद है यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में जो अपेरेंट लगता है कि ये जितने भी व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जूम मीटिंग्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, स्काइप है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के और बहुत सारे वीडियो कॉलिंग अदरवाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का दैट इज सम पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अदरवाइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन आप अपने टेक्नोलॉजी को कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए, उसके बाद अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के लिए, कैसे आप कितने रेस्पॉन्सिव आप उसमें से निकल के आते हैं। और टेक्नोलॉजी विद और विदाउट टेक्नोलॉजी, बीइंग अ वेरी क्विक रेस्पॉन्सिव पर्सन और क्विक रेस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के यूज से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, ईच एंड एवरी जो भी विजिटर है आपको उनके बारे में, ताकि आप जब उनका अगला एक्सपीरियंस आपके साथ हो तो आप डेटा बैंक में जाके जल्दी से उनके साथ इंटरेक्शन शुरू करने से पहले एक वो कंपनी का डेटा बैंक बनना चाहिए। और ये जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे वैसे वैसे आप अपवर्डली ग्रोथ करेंगे। जब भी आप टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करेंगे तो अपवर्डली नहीं यूज करेंगे। एक आपके पास एक पर्सन होना चाहिए जो कि आपके अच्छे क्रिएटिव बना दे, नॉट टॉप ऑफ द नॉच, पर एक आपके ब्रांड परसेप्शन के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। वो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रांड क्रिएट होगा वो आपकी पर्सनैलिटी से क्रिएट होगा। अगर आपके अंदर विजन है तो शायद आप बाहर के एक्सपर्ट्स को भी ले आएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद जब एंगेजमेंट की बात है और टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात है, तो ये दो तरह का इसमें कम्युनिकेशन चलता है। एक होता है जेनरिक कम्युनिकेशन और एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। जेनरिक कम्युनिकेशन में आप अपने डिजाइन देते हैं, आप अपनी स्कीम्स बताते हैं, आप नॉर्मली पर्सन को एंगेज रखते हैं थ्रू योर फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल स्पेसेस। पर जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें फिर आप जब अपने कस्टमर को अच्छे से जानते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे केवल ज्वेलरी की बात करें। सपोज एक पेपर मिल के पर्सन आते हैं, तो आपको अगर कहीं पे भी कोई पेपर इंडस्ट्री के कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले
it would be very very relevant to send it to him. Maybe उन्होंने देखी भी होगी, पर आप एक ये मैसेज भी दे रहे होंगे कि I know Mr. X that I think about you whenever I come across anything जो कि आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है. उसके बाद फिर आप उनके बिजनेस से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन उनको भेज सकते हैं. और थर्ड टाइम में आप उनको बिल्कुल पर्सनलाइज जो आपका और उनका कोई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, उनकी इंडस्ट्री का अपनी इंडस्ट्री का, तब कर सकते हैं. तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हमें हर हालत में ही करना है. हम सब लोग कर ही रहे हैं. और उस सबसे पहले जो मैंने तीनों बातें बोली कि इम्प्रोवाइज करने की एक कला, हमें सारी जितने भी सेल्स की कलाएं हैं ये सारी सीखी जाती हैं. ये कोई ऐसा नहीं है कि जो विद बर्थ लेके आता है. एवरीथिंग इज लर्नेबल. वो देखें कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो कैसे इम्प्रोवाइज करूंगा. उसके बाद मेरा ये कंज्यूमर की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उस हिसाब से मैं अपनी पिच को चेंज करूंगा. उसके बाद फिर एंगेजमेंट में मैं अपना ट्रस्ट और अपनी जो ब्रांड परसेप्शन है वो मैं कैसे बढ़ाऊंगा. और ब्रांड परसेप्शन जो क्वालिटी में एडहेरेंस की वजह से आती है. और एक मजेदार बात यह है कि क्वालिटी में जो एडहेरेंस होती है उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती. जो क्वालिटी में एडहेरेंस ना करने की जो ग्रीड होती है उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है. पर आपका अगर जो आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं और अपने ब्रांड की एक परसीव्ड वैल्यू आपने डिफाइन करी हुई है तो आप कर रहे हैं. तो और उसके बाद गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करें, अपने अकाउंट्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डालें. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ योर कस्टमर कमिंग एंड ड्रॉपिंग बाय, उनके हर एक्सपीरियंस में जो एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए. और अब आप ये जरूर समझें कि डायमंड तो जहाँ है वहाँ है, सोना धीरे धीरे 50,000 का हो गया है. तो आपके कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो 5,000 के टाइम में जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन थी ऑफ द एक्सपीरियंस एट अ रिटेल ज्वेलरी शॉप वाज डिफरेंट, और 50,000 के टाइम में इज वेरी वेरी हाई. इट इज, वी हैव टू बिहेव मच मोर लाइक 7 स्टार whatever service coefficient हमें बहुत बढ़ाना चाहिए. Absolutely. I mean, I would like to end my conversation here only. Thank you. आई थिंक इसी के लिए मतलब आज हमें बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ वापस जाना है जब शुरू करेंगे. और पाठशाला की ओर से एक छोटी कोशिश रहेगी कि हम उसको किस तरह ट्रेनिंग से और ज्यादा सक्षम बनाएं. हिमांशु जी, थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thanks a lot. शायद आपको कहीं जाना था, मुझे मनोज जी ने कहा कि यू गो टू गो समवेयर. हाँ, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा देर प्लीज हमारे साथ जितना हो सके अगर आप बने रहिए. थोड़ा रुक के जाना. कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास जी. उसके पहले मैं ईशू सर को बोलूंगी कि प्लीज हमें 2 शब्द कहिए. What does he think about Ishu ji always gives very very pertinent important. अभी हिमांशु जी ने एक शब्द कहा, तो अभी आप 2 शब्द कहिए. नहीं, मैं आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि ये तो पूरी मतलब तैयारी से आए हैं सर. मैं तो कभी तैयारी करता ही नहीं हूँ. मैं आई एम नॉट somebody I like to be more my feelings are more important for me. मैं जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोलता हूँ. there was some very important in fact pointers जो मैंने हिमांशु जी से लिए. पर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है, आई थिंक उसके बारे में मतलब कोई डाउट नहीं है. तो मतलब आज के तारीख में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है. आई मीन कोई वो तो मतलब ये उससे तो हम बहुत आगे आ चुके हैं. मुझे याद है अभी अनमोल को 34 साल हो गए, और शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तो मैं अकेला होता था और 1-2 लोग होते थे. तो हम खुद बैठ के रोज अपना जो आवक है, जावक है और नंगमेल करना, हम खुद बैठ के अपना नंगमेल करते थे. और तब आसान था क्योंकि तब इतना इन्वेंट्री भी इतनी नहीं थी. हम खुद छोटे थे, नए थे, ग्रो हो रहे थे. पर आप सोचो आज के तारीख में अगर आपको अपनी इन्वेंट्री फिजिकली करनी हो, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो हो ही नहीं सकता. मतलब सबकी इन्वेंट्री जो इतनी लेवल पे तक बढ़ गई है कि आज के तारीख में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिना कंप्यूटर या अकाउंटिंग और कुछ भी जो भी सारे चीजें हैं वो बिना टेक्नोलॉजी के तो हो ही नहीं सकता है. तो क्योंकि आज का जो टॉपिक मुझे बोला गया मेनली टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगा. पर उससे पहले 1-2
क्योंकि हिमांशु जी ने बोले, मुझे एक दो चीजें सिर्फ अनमोल के बारे में बोलना है कि हमने एक तो हम ऑफ कोर्स हम ट्रेन करते हैं अपने स्टाफ को रेगुलरली। हमारी 4 मेंबर की मैनेजर टीम है जो हम रोज मिलते हैं, रोज एवरी डे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने कल जो दिन गया उस दिन क्या सही किया क्या गलत किया। और ये छोटे एक्सरसाइज से आप बिलीव नहीं करोगे कितनी चीजें इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं चलो हम मंथली मीटिंग में बात करेंगे, तब तक आदमी भूल जाता है और वो गलती कभी कभी रिपीट भी हो सकती है उस दौरान। तो एक तो ये छोटी चीज है, हालांकि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, पर हम रोज 5-10 मिनट बात करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा हुआ उसको बढ़ाओ, जो गलत हुआ उसको रिपीट मत करो। अच्छा, उसके बाद हमारा जो एक विजन स्टेटमेंट है अनमोल का, वो है टू बी द क्रिएटर्स ऑफ ट्रेंड्स एंड कस्टोडियंस ऑफ ट्रस्ट इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो हमारे सब जो सेल्स पीपल है उनको ये पता है कि वी टेक द पोजीशन ऑफ अ लीडर। तो हमारी जो सोच है वो लीडर के तरह आती है। वी आर नॉट फॉलोइंग ट्रेंड्स, वी आर क्रिएटिंग ट्रेंड्स। तो of course this should not bring arrogance to you. One is always has to be humble and humility is paramount, but coming from a position where we know that we are not copying and we are actually doing our own research, creating our own designs, things like that. Of course, as far as selling is concerned, मैं एक चीज सीखा था, again I'm going off tangent but I think it's a little pertinent, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक किताब मैंने पढ़ी थी। वो किताब मैंने पढ़ी थी जब मैं मेरे ख्याल से 17-18 इयर्स का होगा। इट वाज द आर्ट ऑफ सेलिंग, और वो इतनी बड़ी किताब थी, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ एक चीज सीखा और वो मैं कभी नहीं भूला हूं। और मैं किसी को, मेरे जो खास करके हमारे सेल्स स्टाफ है, उनको हमेशा ये बात बोलता हूं। सो दैट बुक सेड कि द बेस्ट वे टू सेल इज नॉट टू सेल। ये पैराडॉक्सिकल लगता है कि द बेस्ट वे टू सेल इज नॉट टू सेल। मतलब ये है कि ग्राहक को ये लगना चाहिए कि मैं कुछ खरीद के जा रहा हूं, ये नहीं कि मेरे को कुछ बेचा है किसी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई होप इट विल हेल्प पीपल। और आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जो कर रहे हैं, ये जो इनिशिएटिव पाठशाला की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग आए वो अबंडेंट रहें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं करता हूं किसी और। there is enough in this world for all of us. We have to think in terms of a community, as an industry. There is enough for everybody. We can all do well. तो वो बहुत जरूरी है, वो स्पिरिट बहुत जरूरी है। अभी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी, जो मैं like I'm saying, मैं I have not thought anything, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि जो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया का जो स्ट्रेंथ है, पर उससे पहले भी मुझे याद है जो मुझे टेक्नोलॉजी का फर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था, वो था जब मैं शिल्पा शेट्टी की शादी हो रही थी और उनके लिए हम ज्वेलरी कर रहे थे। और उनकी जो भी ज्वेलरी थी, हमने पूरी ज्वेलरी हमने क्रिएट की थी। मतलब कोई भी चीज रेडी नहीं थी कि ये रेडी, ये चीज है आप ये ले लो। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है जब शिल्पा ने हमको बुलाया था घर पे, तो तरुण तहलियानी जी थे और मैं था और शिल्पा थी, हम 3 थे, क्योंकि हमको वो लुक उनका पूरा डिसाइड करना था। तरुण तहलियानी जी उनके कपड़े कर रहे थे और मैं ज्वेलरी कर रहा था, और 3-4 फंक्शंस थे, तो उसके हिसाब से हमको ज्वेलरी जो है बनानी थी। तो बैंड्रा में हमारा दुकान है, शिल्पा जी तब जूहू में रहते थे। तो जब मैं डिजाइन कर रहा था तो मुझे याद है कि इंस्टेड ऑफ उनके पास हर बार, क्योंकि वो हर डिजाइन हम उनसे अप्रूवल लेते थे, उसमें फिर चेंजेस करते थे, वो बोलती थी ये नहीं वो वगैरह। तभी ब्लैकबेरी बहुत एक, मतलब अभी सब एप्पल और आईफोन पे आ गए हैं, तब ब्लैकबेरी चलता था। तो मुझे याद है मैं ब्लैकबेरी पे उनको डिजाइन भेजता था और उसके कारण हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। नहीं तो एक पर्सनल मीटिंग करनी है तो वो कभी स्टूडियो में है, कभी कहाँ है, वो मीटिंग करने में 2 दिन लग जाए, फिर उसका अप्रूवल मिले, तो टाइम था ही नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर टू
टेक्नोलॉजी जो मुझे मिला, कमिंग टू टेक्नोलॉजी एज ऑफ टुडे, अभी ये तो सबको पता है कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो, लेकिन द मेन थिंग इज हाउ कैन यू बी डिफरेंट. सो अगर आज जितने सारे दुकानें हैं इंडिया में, ओके, कोई थोड़े छोटे होंगे, कोई मीडियम होंगे, कोई बड़े होंगे, सब अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और सोशल मीडिया का यूज करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर क्या आएगा? कभी कभी ये हो जाता है कि डेल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाती है. मतलब ग्राहक बोलता है यार मेरे को छोड़ो यार, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा ये हो रहा है. तो द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज नॉट दैट वी यूज टेक्नोलॉजी, बट हाउ वी कैन बी डिफरेंट. हाउ वी अगर एक क्लाइंट को 10 मैसेजेस आते हैं या क्रिएटिव्स आते हैं, तो वो आपका जो मैसेज है उसको, उस पर वो ध्यान कैसे ज्यादा दे, या व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन इज टू गेट द राइट इमोशन फ्रॉम दैट पर्सन. बिकॉज अल्टीमेटली हमको ये समझना है सबको कि जो हम माल बेच रहे हैं वो हम पैसा तो ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब ग्राहक के पास पैसा नहीं होगा तो वो माल क्यों खरीदेगा? लेकिन वो सिर्फ पैसे से माल नहीं खरीदता है, वो सेंटिमेंट से माल खरीदता है. जब उसको माल खरीदना है, उसका सेंटिमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये, आई फील लाइक बाइंग दिस. तो वो एक फीलिंग है. तो वो फीलिंग हम कैसे लाएं? हाउ कैन वी बी डिफरेंट? आज अगर मुझे हैप्पी बर्थडे विश करना है, मैं भी विश कर रहा हूँ, कोई और भी विश कर रहा है, तो उसमें क्या बड़ी बात हो? पर आपने ऐसा कैसा आपने विश किया कि वो ग्राहक को स्पेशल भी लगे, या उसको ये फीलिंग लगे कि हाँ ये मतलब अनमोल तो, हाँ यार ये तो मतलब ये मेरा दुकान है, या कितना इनको मेरा कंसर्न है, या ये कितना मेरे बारे में सोचते हैं. तो those are things that are important. What we do is not important, how we do it is important. तो 2-3 छोटे छोटे मैं जो हम करते हैं, जैसे हमारा एक जो स्टाइल है, एक सिग्नेचर है, वो हम कभी उसको हम खोते नहीं है, क्योंकि एक वो ब्रांड का जो परसेप्शन बोलो, या एक मतलब देख करके ग्राहक को लगता है हाँ ये अनमोल से आया है. तो there is that creative has a certain layout, has a certain, even our advertisements, all our communication, in fact to be communication from your visiting card to your letterhead to your invoice to your advertisement creative to your social media creative, there has to be a consistency, there has to be a storyline which is which is like your कि ये आया मतलब ये अनमोल का है. तो वो बहुत एक जरूरी चीज होती है. और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना हिमांशु जी ने कहा कि हम वो क्लाइंट को जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. तो हमारे यहाँ जो हमारे 4 मैनेजर हैं, उनके डेडिकेटेड क्लाइंट्स हैं. तो क्योंकि 4 लोगों में डिवाइड हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर एक के ऊपर नहीं आता है. तो वो they can be more personal, because at the end of the day the client should feel कि जो मुझे मिल रहा है वो पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा है. आज के तारीख में ये एक मतलब डिसएडवांटेज है ज्वेलरी के लिए कि क्लाइंट को एक्सक्लूसिव सामान चाहिए, है ना. आज अगर आप गाड़ी लो तो मर्सिडीज सबके पास सेम मॉडल है, चलेगा. अगर आप लुई विटॉन का बैग लो, आप पार्टी में गए, आपने एक बैग लिया हुआ है, किसी और ने सेम बैग लिया हुआ है, द क्लाइंट इज नॉट इट्स ओके, डजंट मैटर. तो अगर आपने जो ज्वेलरी पहनी है, किसी और ने वही ज्वेलरी पहनी है, तो ग्राहक आपको आकर बोलेगा क्या इतनी कॉमन चीज मुझे दे दी यार, वो तो शादी पे किसी और ने भी सेम चीज पहनी थी. तो एक्सक्लूसिविटी इज व्हाट अवर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर. दे मे नॉट से इट, बट इन देयर माइंड उनको एक्सक्लूसिव चीज चाहिए. तो जब आपका कम्युनिकेशन भी जाता है, तो उनको लगना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन मेरे लिए है सर, ये पूरी दुनिया के लिए आम नहीं है. तो these are a few things which of the came to my mind. तो ये हम कर सकते हैं. I don't know whether I'm making sense, not making sense, but these are a few of the things. नहीं करेक्ट, सही बोल रहे हैं शुभ भाई. नहीं, हम हमेशा हमारे जो टीचर आते हैं, क्योंकि उनको 5-10 मिनट का वक्त मिलता है हमारे 1 घंटे के सेशन में, बट ऑनेस्टली कुछ 5-10 मिनट में उनका पूरा जिंदगी का सार हमें दे जाते हैं. जैसे आपने अभी कहा, हम कभी भूलेंगे नहीं कि आपके यहाँ जो कस्टमर आता है वो हमेशा ये सोच के जाता है कि मैं यहाँ से कुछ
खरीद के जाता हूँ, मुझे किसी ने भेजा नहीं, ये मैं कभी भी भूल नहीं सकती. एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज द एक्सपीरियंस व्हाट वी नीड टू गिव टू द कस्टमर्स. एंड और यू नो आज के तारीख में अगर आप मिलेनियल्स के बारे में, सॉरी आई एम टेकिंग बिकॉज आपने ये बात छेड़ी, मैं बोल रहा हूँ, तो जो हम अभी नए मिलेनियल्स के बारे में सोचते हैं, तो मिलेनियल्स का जो डीएनए है, फंडा इज एक्सपीरियंस. उनको फ्लैट खरीदना नहीं है, उनको गाड़ी खरीदनी नहीं है, वो अपने उबर और ओला में दे आर हैप्पी, उनको ट्रैवल करना है. तो ऑल दिस शोज दे वांट एक्सपीरियंस. तो इसीलिए इवन व्हेन दे कम टू बाय विथ यू, दैट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज के तारीख में प्लीज ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड कि जो अगर हम यंग कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, जो आगे चल के यू नो बड़े होंगे, हमारे कोई जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, दे हैव स्टार्टेड विद अस व्हेन दे वर वेरी यंग, एंड वो आपका पूरा रिसर्च करके आपके दुकान पे आएंगे. तो पहले आपकी वेबसाइट प्लीज ठीक करिए, हम भी अभी रिवैम्प कर रहे हैं, तो वो पूरा अपना होमवर्क करेंगे, 3-4 लोगों को रिसर्च करेंगे, फिर आपके दुकान पर आएंगे. और जब वो दुकान पर आए, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उतना तो दें, उससे ज्यादा दें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही है जो कन्वर्ट करेगा सेल को. बिल्कुल बिल्कुल. Manoj ji, Sumit ji, would you like to ask any questions? I have one question for Ishu ji. Not to Ishu ji, it is to the Royal Professor of Oxford University. Okay, Royal okay. So Ishu ji, not to Ishu ji as well. So you gave some excellent inputs. What I wanted to understand कि ठीक है, as an owner it is easy to understand the importance of technology, but how do you encourage your team to embrace it, because उनके लिए थोड़ा सा learning curve होता है, right? Because they may not be as educated or they may not be as trained. So how do you encourage them to embrace technology at the same rate or at the same enthusiasm with which the owner would like to embrace it? Isn't that a challenge, and how do you address it? No, it is definitely it is a challenge. But क्या है, सबसे पहले तो ओनर को है ना अपना मोह निकालना चाहिए. तो बहुत ओनर लोग हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो आगे हों, ग्राहक उनको जाने, यू नो. तो जब तक आप डिटैच्ड नहीं होगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता. यू हैव टू यू नो you have to, I'm looking for the right word, empower. You have to empower your people, and when you empower, you have to be willing to, you know, let go if they make mistakes, because mistakes will happen. लेकिन क्या होगा जब आप उनको empower करोगे, and if you let them make mistakes, वो सीखेंगे, and in fact आपका काम और आसान होते जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है empower करना. और empowerment का मतलब, बहुत लोग empower करके भी मतलब वो empower तो करते हैं, फिर दखल अंदाजा करते हैं, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने बोला था लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था. तो वो आपने उसको पूरा मतलब बलून को एक पिन लगा दी, फुस हो जाएगा. तो एम्पावर करना बहुत जरूरी है. एंड जब आप जो हम मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग के बारे में मैं बात करता हूं, हम रोज करते हैं. हम एक तो मैनेजर्स के साथ रोज मीटिंग करते हैं, और प्लस हमारा एक जो मीटिंग होता है वंस अ वीक, ये होता है एचओडीज के साथ, जो हमारे सारे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह. तो इस मीटिंग में मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, अभी सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है कैसे कर सकता है. तो ये जो मीटिंग है, उसमें हम अपार्ट फ्रॉम के ये हमारे आइडियाज या ये हमारे नया प्रमोशन का स्टाइल या हमको ये करना चाहिए, वो तो एक उसका डिस्कशन होता है. पर मैं हमेशा, एंड ये लास्ट खास करके 1.5-2 साल से मैं कर रहा हूं, कि 10 या 15 मिनट मैं बात करता हूं वैल्यू सिस्टम्स के बारे में, कि व्हाट इज माय वैल्यू सिस्टम, एंड द सेम शुड बी द वैल्यू सिस्टम ऑफ आवर स्टोर. कि जैसे एटीट्यूड हैज टू बी लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म. ऑनेस्टी, इवन इफ यू लूज अ सेल, इट डजंट मैटर. तो देयर आर दीज वैल्यू सिस्टम्स दैट यू मेक, जहां पर इनफैक्ट मैंने अपने स्टाफ को ये भी बोला है कि हमने हमारा मैन्यूल है, हमारे मैन्यूल का नाम है हम अनमोल हैं. तो हमारे मैन्यूल में सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं और एक ऐसी चीज हो जाए जो मैन्यूल में नहीं लिखी है, तो आप क्या करोगे? तो तब आपको फॉलो करना है जो हमारा वैल्यू सिस्टम है. अगर मैं वहां पर होता, सर वहां पर होते, तो वो क्या करते?
वो आपको करना है। और उसके बाद अगर गलती हुई, मैं कभी भी किसी को रेप्रिमांड नहीं करता हूं। हाँ, हम बात करते हैं, अगर किसी ने माल सस्ता बेच दिया, गलत कर दिया, हाँ मतलब बेसिक स्टुपिडिटी ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है, लेकिन अदरवाइज बहुत रेयरली हम किसी को चाबुक लगाएंगे। पहले हमको लगता था कि चाबुक लगाने से काम होता है, पर अब लगता है कि चाबुक लगाने से उल्टा आदमी जो है वो फिर अपना इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो फिर सेफ खेलेगा, वो बोलेगा नहीं ये जो लिखा हुआ है उतना ही करना है, अपने तो कंजर्वेटिव काम करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पावर करने के अलावा, इंसेंटिवाइज करना। मेरे ख्याल से आज के तारीख में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है, हमको समझना है। और ये हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उन पे हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली शेयरिंग आवर प्रॉफिट्स। अगर वो काम सही करेंगे तो ही हमारा सेल होगा, तो ही हमको प्रॉफिट होगा। उसमें से अगर हम एक छोटा हिस्सा उनको देते हैं तो इट इज ओनली फेयर, उससे बहुत इंसेंटिवाइज हो जाता है इंसान। और both these together, empowerment and incentivizing and adding the your value systems, your core value systems. In fact, हम अपने जो मीटिंग करते हैं अभी कुछ टाइम से, हम जब हम मीटिंग समाप्त करते हैं, हम एक कोई अच्छा श्लोक वगैरह भी बोलते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज पीसफुल। जब आप मीटिंग से निकलो तो आप पीसफुली निकलो, नहीं एजिटेटेड नहीं निकलो, then you're raring to go. It's again the sentiment that you should have when you're facing the customer is you have to be charged, you have to be pepped up. अगर आप pepped up नहीं होंगे तो फिर आप सामने you will not be able to deliver the needful. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया ईशू जी। आप, बहुत लोगों ने आपको कमेंट भी दिए कि आपके बोल बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच ईशू जी। हिमांशु जी, अगर हो सके तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, 1 घंटे का सेशन है, another 40 minutes, and now I will request I'd like to add something there, yes, just so that we don't lose Ishu ji after this. जब ईशू जी बात करते हैं about how we engage with our consumers, and he talked about team meetings, I think this is a very very important factor कि हम हमारी टीम से भी feedback ले। Sometimes we'll be surprised the communication and the feedback that the team can give us is Absolutely. probably not even expected from the owners. Sometimes they think beyond us, they think better than us, and I've been very surprised with my team's feedback. So I think that's one factor about empowerment, like he rightly said, कि team को वो feeling देना कि आप कर सकते हैं is 50% battle won. It's very important to give them that feeling that it's not so difficult. And besides, technology is not difficult hai nahi. More than anything, I think it's we kind of just fear that. But technology, hum jo badi cheezein jo sochte hain, like app development and e-commerce websites, even the basic ideas and technology that can be adapted can bring brilliant amount of sales in our jewelry industry. I just think that it's about channelizing and finding out the right product for the right customer and speaking the language that the customer understands. Like Ishuji talked about. Karishma, I will. There has been feedback that you should talk in Hindi. Request you to speak in Hindi. हिंदी में बोले आप ज़्यादा। हाँ जी, मैं try करूँगी. I apologize, मेरी हिंदी will not be so good, but I'll try. Sorry. Okay. Can I add something? Go ahead. Can I add something? Yes, please, Ishuji. Okay, because because we are in the COVID-19 situation, and I realize that most of what we are talking, we will probably like to implement it the moment we open, or like in other areas of India, people are already open. तो एक बहुत important चीज जो है वो especially post COVID is we have to make sure that we are not in fear. Acceptance is very important, acceptance of the situation. क्योंकि जब हम फेयर में होते हैं ना तो वो काम खराब हो जाता है। कितनी बार हम जब सेल करते हैं हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि सेलिंग इज नॉट ओनली व्हाट यू टॉक। ओके, ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and which most of us don't realize and we don't give it importance is the vibe that we give out. When we are in fear or when we are desperate, the vibe is transferred to the client. The client will not buy from you. We have done well enough in the past. We've had a good run. God has been kind.
कभी काम ठंडा होता है, कभी काम गर्म होता है. जब काम बहुत अच्छा था हमने कभी कंप्लेन नहीं की. थैंक यू बोलना चाहिए था. कुछ लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला भी नहीं. टुक इट फॉर ग्रांटेड. तो आज जब काम थोड़ा नरम है तो आज कंप्लेन मत करो. एक्सेप्ट इट. Things will change. It's a matter of time. So that acceptance is very important. Please, all of you, I request, don't come out of fear. Come out of, abundance. Kanti ji, are you here? Yes, I'm here. Yeah. Okay. So I think we should start with Yes. this session. Yeah, Thank please. you so much, Ishu ji. Sorry, I took a little extra time. No, absolutely. Our pleasure. Okay, now I would request हमारे आज के गुरुजी करिश्मा जी और प्रशांत जी to start the session and help the students as to how to improve the relationship with our customers. अपने ग्राहकों से कैसे हमारे engagement बढ़ाए. Over to you, Karishma and Prashant. Thank you everyone. I think Himanshu ji, Ishu ji, they've done a fabulous job of सारे information को consolidate करके ये आधे घंटे में I think they've covered everything. But yes, veterans hai industry ke, they've been in this industry for the longest, in this field of retail for the longest, so it's always nice to hear from them. Again, I personally apologize my language. मैं जितना हो सके I will try to speak in Hindi. Just हमारी industry में गुजराती इतनी common हो गई है, and with the kids learning French, and anyway, so yes, I want to just reiterate on two things. एक हिमांशु ने बात किया था about trust. I think it is such an important and in fact the most important factor आजकल जब हम retail store के अंदर जाते हैं, हम purchase करते हैं on the basis of face value. अगर मैं किसी को जानती हूँ और वो product उनके competitor के पास शायद थोड़ा सस्ता हो, तो मैं जिसको मैं जानती हूँ मैं उससे पहले खरीदूंगी because of the face value, because of that trust that I have in that consumer. आज जब मैं अनमोल से शायद कुछ खरीदूं, or it's because I probably know Ishu ji personally. Now it's also that let's say कोई sales staff हो अगर अनमोल ज्वेलर्स में, so then the idea is that I am able to purchase from Anmol because I know him and he is representing the brand. तो हमारे लिए, now coming back to what Ishu ji talked about, is when we talked about consumer engagement, I think it is important कि हम अपने staff के साथ भी engage करें. जो 10 मिनट की मीटिंग करते, जो we talked about, मैं भी करती हूँ अपने टीम के साथ. We have a 10-minute stand-up meeting every day, and like I said, challenges जो पहले we've encountered in the previous day and what we can do to curb those challenges. So that's typically what I wanted to talk. I think I love the factor that Himanshu ji talked about trust and brand credibility, because it all eventually entails from our team. Secondly, of course, technology. We understand that today it is a matter of survival. वो option है नहीं, but again, इतना important नहीं है कि हम अपने सारे resources technology में डाल दे, सारे पैसे technology में डाल दे, and then we are worried कि इसको activate कैसे करना है, because खाली एक website बना के आपका काम होता नहीं है. You've got a whole lot to do to pull that traffic to the website. So it is a 360 degree of a lot of work involved in technology. And we as VDB would like to tell you that we're here to help you solve that technology. But anyway, I don't want to talk about Virtual Diamond Boutique. Just want to get back to हमारा presentation. Ishu ji talked about one principle. There was one thing that I have, which I strongly believe is 80-20 principle. हमारा जो 20% of consumers है, वो 80% business लाते हैं, जो 80% consumers है, वो 20% का business लाते हैं. And this is a thumb rule across all fields. आप फिर वो retail business में देख लो, personal life में देख लो. 80-20 principle is, I'm a very strong believer, and it is important कि हम जो हमारे 20% के consumers हैं, उनको हम कैसे engaged रखें, कैसे involved रखें, how we can ensure that the experience they have in our store is top notch, is better than, and like I said, it doesn't have to be a very expensive experience. It could be a very simple experience, and Prashant will take you through the presentation where you will see a whole lot. I really hope you benefit out of this presentation, especially for the sales team, and we'll be happy to take any questions. Yeah, Prashant, over to you.
I think Thank you, Karishma, let Karishma. Prashant start with the session first, and then we can take the questions. Yes, Yes, yes. of course, after the presentation, please. Thank you, Karishma. Thank you, Ishi ji. Thank you, Himanshu ji, for your valuable feedbacks. So मैं हिंदी में ही स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए. तो हमारा जैसे आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने ग्राहकों से कैसे बेहतर रिश्ते बनाएं. ये हमारा बेसिक टॉपिक है. उसके बारे में हमको क्या करना है. पहले जब ये टेक्नोलॉजी आई तो एक सेल्फी मोड हुआ, सेल्फी का एरा हुआ करता था. उसके बाद आया अपना सोशल मीडिया एरिया. उसमें हम जनरली क्या किया करते थे. Prashant, can you share your screen, please? Yeah, sharing. I can see his screen. Can everybody see Prashant's screen? Yeah, Yeah, even I can also. Yeah, okay. even I can see the We screen. can see. All right. Go ahead, Prashant. Okay, yeah, thank you. तो उसमें हम लोग का एक बेसिक एक पहले फैमिली ज्वेलर्स हुआ करते थे. मतलब हम उसी फैमिली से परचेस किया करते थे. उसी टाइम पे हमारा ब्रांड भी हुआ करता था, ब्रांडेड ज्वेलरी भी हुआ करते थे. बट हम प्रिफर करते थे कि फैमिली ओन्ड जो उस तरीके से चलते आई है वो करते जाए. उसी से हमको खुशी मिलती थी. और जो खुशी मिलती थी हम शेयर करते थे, सेल्फी लेते थे, हमारे सगे संबंधियों से, पड़ोस पड़ोसी से शेयर किया करते थे. जैसे सोशल मीडिया मोड से हम सबको शेयर किया करते थे कि ये मैंने नई चीज परचेस की है, कैसे है. तो वो चीज हुआ करती थी. तो उसके बाद में अपना मेन जैसा मेन पॉइंट है अपना रिटेलर्स का गोल क्या होता है. जैसे हिमांशु जी ने राइटली पॉइंट आउट किया है, ट्रस्ट. ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हमको वही चीज है जिसकी वजह से हम कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं. ट्रस्ट कैसे बिल्ड कीजिए. जैसे इशू जी ने भी राइटली पॉइंट आउट किया, सेटिस्फैक्शन. जैसे मैं अगर कुछ खरीद, मेरे को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं खरीद के जा रहा हूँ, ना कि मुझे कुछ बेचा गया है. वो एक सेटिस्फैक्शन मुझे जब आता है तो वो अलग ही फीलिंग होती है. मैं भले 5,000 की चीज खरीदूं या 5 लाख की चीज खरीदूं, मुझे वो सेम फीलिंग आती है. तो मैं ऑब्वियसली मुझे वो अंदर से फीलिंग है कि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हीं के पास जाकर खरीदूं, ना कि मैं खुद ही परचेस करूंगा. मैं मेरे सगे संबंधियों से या रिश्तेदारों से भी वही चाहूंगा कि आप इनके पास जाइए, इनके पास सर्विस अच्छा है, इनकी जो सर्विस है, इनके पास जो वैरायटीज है बहुत ही अच्छे है. तो वो भी रेफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं. जैसे भी ट्रस्ट फैक्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे पॉइंट आउट किया है. तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जैसे है कस्टमर किंग. कस्टमर है ये हमेशा किंग होता है, भले वो छोटा कस्टमर हो या बड़ा कस्टमर हो. हमें एज ए सेल्स पर्सन कभी भी इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. उनको सेम ट्रीटमेंट देनी चाहिए. ये वो फीलिंग से ही जो वो रिस्पेक्ट बनता है, वही हमको आगे जाके सेटिस्फैक्शन देगा, रिपीट सेल्स देगा और रिफरल देगा. ये चीज एज मैंने पहले बताया कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है और सेटिस्फैक्शन इज द सेकंड पॉइंट. वो जब दो चीजें आ जाती है, अपने आप आपका रिपीटेड सेल्स और रेफरेंस अपने आप आ जाएगा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये पर्टिकुलर सेल्स स्टाफ जो डे इन डे आउट अपने स्टोर में कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं या फोन पे बात करते हैं. और मैं अगर फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं सबसे मेरा पेस स्लो कर दूंगा. राइट. उसके आगे कस्टमर एंगेजमेंट. जैसे हम लोग ने पॉइंट डिस्कस किया, कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज, वही एक सेल्स का एक मेन मोटिव होता है. उससे क्या होगा आपका, एक तो अपनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है. मैं अगर भले मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर सर्विस दूंगा तो मेरे कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी. वो इनसे मेरे को सेकंड चीज में मेरे को इंक्रीज परचेस, कस्टमर्स परचेस ज्यादा करेंगे, वही कस्टमर्स आगे जाके रेफरल्स देंगे. उसके बाद है इंक्रीज क्रॉस सेल. क्रॉस सेल मतलब क्या होता है, सेल्स में अगर मैं एक कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल एक स्मॉल इयरिंग लेने के लिए आया है फॉर हिज सिस्टर, जस्ट एन एग्जांपल, हमने वो तो परचेस कर दी. ऑब्वियसली उसको साथ में ही अगर उसको हम कन्विंस कर पाए कि सर आप आपके सिस्टर के लिए कुछ चीज ले रहे हो, आप आपकी वाइफ के लिए भी कुछ लेना चाहोगे, आपके मदर के लिए कुछ लेना चाहोगे, अगर वो चीज में अगर कस्टमर एक सादा लॉकेट भी लेके जाता है अपने से, वो एक अच्छा सेल्स अपॉर्चुनिटी होगा और एक अच्छे सेल्स पर्सन की एक सेल्स पर्सन एक अच्छा जाना जा सकता है. वो एक है. और ऑब्वियसली ये जब सब चीजें एक साथ मिल जाती है तो हमारे लिए इंक्रीज रेवेन्यू तो अपने आप ही हो जाता है, जो हमारा एंड ऑफ द डे मेन मोटिव होता है. कस्टमर डेटा बैंक. जैसे इशू जी ने बताया कि आज के
एडवांस युग में जैसे मिलेनियल्स जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर एडवांस हो गए हैं, तो उसके लिए हमें भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। जब जैसे ही हम ये कस्टमर डेटा बैंक जरूरी क्यों है? कस्टमर्स का कभी अगर बर्थडे आता है तो हम सामने से उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उनके एनिवर्सरी अगर कुछ होती है तो उसमें उनको रिटच कर सकते हैं। इसके थ्रू एक सर्च पर्सन की एक कस्टमर से पर्सनल बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ सकती है। ऑब्वियसली उसके अलावा ये डेटा बैंक हमें और भी चीज काम आएगा। अगर समझो अगर उनको रिटारगेट करना है तो ये इजी वे कि हमको उनके डेटा हमारे पास ऑलरेडी फीडेड होता है। अगर कुछ न्यू कलेक्शंस हमारे पास आए हैं, एज ए सेल्स पर्सन मैं बताना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 25th ऑफ एवरी मंथ हूँ, मैं अगर मेरे टारगेट से कुछ अगर शॉर्ट रीच हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये कस्टमर्स है, अगर उनको मैं न्यू कलेक्शंस के बारे में बताऊँ या तो हो सकता है कि वो कस्टमर परचेस करे, और वो एक अलग वे में कस्टमर बॉन्डिंग भी बढ़ाता है। कस्टमर को सामने से भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मुझे उनसे अच्छी सामने से इंफॉर्मेशन आती है कि न्यू कलेक्शन आया हुआ है। कुछ अगर फेस्टिवल्स ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ प्रमोशंस आने वाले हैं, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहे हैं, या कुछ नया सेल हो रहा है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हम पर्सनल डेटा जब कलेक्शन हमारे पास है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। बट ये पर्सनल डेटा हमको कब कलेक्ट करना है? तो जब कस्टमर का सेल एक फाइनल हो जाता है और हम उनका इनवॉइस प्रिपेयर करते होते हैं, वो टाइम पे ये पर्सनल एक सेल्स पर्सन ऐसे पर्सनल एंगेजमेंट लेके ये डेटा कलेक्ट कर सकता है। जैसे सेकंड स्लाइड में मैं बताया जाऊंगा, उनका फीडबैक भी ले सकता है। फीडबैक एक हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म भी एक प्रिंटेड हो सकता है जिसके थ्रू हम फीडबैक ले सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पैंटालून्स में आप कभी गए होंगे तो जब भी आप सेल्स काउंटर पे जाते हो, जब भी पेमेंट करते समय, जब वो सेल्स पर्सन आपका पेमेंट इनवॉइस जनरेट करता होगा तभी आपको एक सामने वो फीडबैक एक ऑटोमेटेड मशीन होता है, उस पर फिल करने होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर हमारे पास वो भी अगर आईपैड या डेस्कटॉप कुछ होगा डेस्क पे तो उसके थ्रू भी हम फीडबैक ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ वेबसाइट है तो हम उन कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स भी दे सकते हैं। उनके शॉर्ट वीडियोस है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा, जिसके थ्रू वो वीडियोस भी हमारे वेबसाइट पे आप करके एज ए प्रमोशनल थिंग भी हमारे एज ए ब्रांड के लिए अच्छी तरह से काम आ सकते हैं। एक छोटा सा आपको वीडियो बताना चाहूंगा उसके लिए। प्रशांत आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत आवाज नहीं आ रहा है। शायद इसका वॉल्यूम, लेट मी सी। I'm going to take this over. Prashant, don't worry about it. Maybe there's something wrong with the video. ये idea है testimonies का. When a customer walks into the store, हम लोग को वैसे भी जैसे millennials है, आप हमको social media पे डाल दो तो हमें बहुत अच्छा लगता है. So this is when in fact I gave a testimony to one of my friends retail stores. मैं वहाँ पे frequently जाती हूँ purchase के लिए because my in-laws buy from there. He happened to make me wear some jewelry and he said एक testimony दे दो. So these are little things जो हम बोल रहे थे, जो आप literally capitalize करके, it doesn't cost you too much. All you have to do is छोटा सा video लेके आप अपने social media platform पे डाल दो, उनको tag कर दो, so that you're further penetrating and getting into their list of friends and family as well. It's a very simple example of जैसे testimonies की value क्या है. We sometimes don't realize, like for example we talked about Shilpa Shetty consuming from Anmol Jewelers. ऐसे videos, of course she's a celebrity, but even otherwise when you get to know जो आपके friends और family है, उनकी testimonies are very important because word of mouth marketing, जैसे हम review बोलते हैं कि मैं ये retail store में गया था, मेरी experience was brilliant. I walked inside, they saw me that I was, it was probably garam, it was hot, and they offered me nariyal pani. Something so small also जो आपको वो value add दे सके is what this is all about. So it's about word of mouth marketing. जो आप जितना भी marketing करो, word of mouth is unbeatable. So what the experience that you give your consumers is what will eventually bring you referrals and additional consumers as well. Go ahead, Prashant. Okay, thank you. जैसे
मतलब हम लोग ने कस्टमर कांटेक्ट के लिए जैसे एक अर्लियर बताया था, ये व्हाट्सएप भी अभी बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ एक कम्युनिकेशन हो सकता है जिसको हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल एक साधारण सा इंसान भी रात सुबह उठने के बाद सबसे पहले चीज देखेगा वो व्हाट्सएप, रात को सोने से पहले देखते हैं वो व्हाट्सएप। तो बहुत ही इजी टू यूज है। तो उसमें हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? हमको अगर एक कोई सेल्स पर्सन को ऐसे मुझे टारगेट करना है, रीटारगेट करना है, तो उसको हम टारगेट करने में बहुत ही आसानी होती है। पर्सनलाइज टू टेस्ट, जैसे हिमांशु भाई ने अर्लियर उनके कन्वर्सेशन में बताया कि हर कस्टमर का एक अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। तो एज ए सेल्स पर्सन मुझे मेरे कस्टमर का टेस्ट पता होना चाहिए। तो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अगर कुछ डिजाइन या नई कुछ चीज आती है मेरे स्टोर में, तो अपफ्रंटली मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ। तो वो चीज में क्या होता है, कस्टमर को फिर से पर्सनल टच हो जाता है। अगर उनको भले वो 2 महीने या 3 महीने के बाद बाय करने वाला, हो सकता है कि आप नेक्स्ट वीक या 1 महीने में के अंदर आपसे वो परचेस कर सके। तो एक व्हाट्सएप मोड एक एज ए सोशल मीडिया मोड अच्छी तरह से यूज कर सकते हो और कॉन्टेक्ट कस्टमर्स, बिल्ड पर्सनल रिलेशन विद देम। अभी फिलहाल एक नए मोड में एक डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैं कहना चाहूंगा। ये आज के करंट टेक्नोलॉजी यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओल्ड एजेस में क्या हुआ करता था कि कस्टमर वॉक इन किया आपके स्टोर में, आपके पास जो भी इन्वेंट्री डिस्प्ले में है वही देख पाएगा। बट उसके अलावा क्या, आपके पास ऑब्वियसली कोई अगर सोल्ड आउट इन्वेंट्री हो गई है, कोई इन्वेंट्री अगर आपके एग्जीबिशन या कहीं मेमो में गई हुई है, या फिर कुछ सैम्पलिंग स्टेज में है जो जिसपे काम चालू है, या न्यू कलेक्शंस आपके कुछ आने वाले हैं बट उसके डिजाइन रेडी है, तो वो चीजें आप आपके डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे आपका स्टोर में आप आईपैड रख सकते हो या लैपटॉप रख सकते हो जिसके थ्रू ये डिस्प्ले कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कस्टमर्स के लिए डिजाइन के ऑप्शंस है वो होराइजन बड़ा हो जाता है। मतलब कस्टमर को आए तो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि मैं इतने डिजाइन से देख पा रहा हूँ या कुछ, तो वो चीजें उनको ज्यादा मिल जाती है। तो वो एक बेनिफिट अच्छा मिलता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इसके अलावा और एक चीज क्या मिलती है कि अगर कस्टमर भले आपके स्टोर में नहीं आया है, आपको वो चीज डिजिटली उनको फॉरवर्ड करनी है। जैसे अर्लियर हम लोग ने स्लाइड में देखा कि जैसे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो। तो भले कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आया है, फिर भी आप उनको एज ए पर्सनल टच दे सकते हो ड्यू टू दिस डिजिटल मैनेजमेंट। बेसिक सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये एवरी सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक हाई एंड सॉफ्ट स्किल्स या टॉप एंड कस्टमर सर्विस की जरूरत नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब भी कस्टमर कोई वॉक इन करता है आपके स्टोर में या फिर आपको कॉल भी करता है आपके स्टोर में, सबसे पहली चीज तो आपको उनको ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट करने के बाद तो उनको एक फीलिंग आना चाहिए कि सामने वाला जो भी आंसर कर रहा है उसका एक स्माइली फेस हो रहा है, तो एक उनको पर्सनल फील आनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल कस्टमर फिजिकली आता है अपने स्टोर पे, तो ऑब्वियसली वो सेल्स पर्सन का अटायर प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स होने चाहिए, बॉडी ऑर्डर प्रॉपर होने चाहिए, नेल्स प्रॉपर, फेस लाइक प्रॉपर क्लीन अप होना चाहिए, मतलब ज्यादा पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स के लिए हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, तो मैं लाइक ऑब्वियसली एज ए सेल्स पर्सन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करता हूँ, तो एज ए सिक्योर साइड में ऑफिस के लॉकर में एक एक्स्ट्रा क्लोथ लाके ड्रेस लाके रख सकता हूँ। तो अगर मेरे कपड़े कुछ खराब हो जाते हैं तो आई कैन चेंज दैट। एक एक्स्ट्रा डीओ लाके मैं मेरे लॉकर में रख सकता हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टोर्स में होते हैं, तो इसी तरह से मैं मेरा अटायर परफेक्ट रख सकता हूँ। और ऑब्वियसली मेरी बॉडी लैंग्वेज तो एज ए सेल्स में एज ए कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। यस, वर्चुअल डायमंड बुटीक जैसे इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इसमें एक हमारे वर्चुअल डायमंड बुटीक में एक इंटरैक्टिव इजी टू यूज ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको 4 कैटेगरीज अवेलेबल है। तो एज ए इंस्टोर टूल भी आप उनको यूज करना चाहते हो तो आपको डायमंड्स है, जेमस्टोन है, ज्वेलरी है, लैब ग्रोन ऑप्शंस है। ये बिल्कुल फ्री फॉर बायर्स है, रिटेलर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आपको सब ऑप्शंस अंडर वन रूफ मिलते हैं। तो अगर आपका रिटेल शोरूम है, अगर कोई
डायमंड के लिए एक कस्टमर आपके स्टोर में आता है, तो आप उनको वो चीज भी आपके आईपैड में या लैपटॉप में बता सकते हो, और वो कस्टमर नेक्स्ट शॉप में नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे उसको सब ऑप्शन एक ही अंडर वन रूफ मिल रहा है. Karishma, would you like to cover this another points? Sure, yes. So, Virtual Diamond Boutique is a software solution provider. हम मानते हैं कि बिजनेस वालों को, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, उनका बिजनेस हैंडल करना चाहिए. लुक इनटू योर सेल्स, लुक इनटू मर्चेंडाइजिंग, लुक इनटू क्वालिटी कंट्रोल. बहुत ही वर्टिकल्स है जो मुझे लगता है कि आप लोग को फोकस ऑन दैट. Leave the technology for the professionals, and this is what Virtual Diamond Boutique does. We provide software as a solution. हमने पूरा empire ready किया है. We're only telling you license it, use it, and we take care of all your services. इसमें वैसे काफी चीजें हैं, like in terms of integrations to Shopify, Magento websites, existing websites, iframe solutions, APIs, app development, e-commerce solutions. There's a very small video. I think I'll just let Prashant play that, and then we can open to questions. But please feel free to reach out if there's any question that you have. जो प्रशांत ने भी presentation दिया था, if there's anything that you'd like to ask, please feel free. Yes, Prashant, can you play the video, please? Prashant, we can't hear the video. नहीं, अभी भी नहीं आ रही है आवाज प्रशांत. Prashant, you want to open it on the other link and just open it and show it to us? It's a nice video. I'd like to see it. So this video, you want to play it on another thing? Yes, just so that people can hear it. The content is important. Because this is the highest volume. I think there's a problem with the audio while you are screen sharing. So if it's not happening, you might just have to skip the video altogether. That's fine. Just see if you can open it on another link. Otherwise, it's fine. We can skip it and then just share it with everybody later on. Okay. I can open it, but it's the same volume. Volume level is that much only. No problem. No problem. So if you want someone, I can share that video separately. वो हम लोग अलग से कर देंगे. So Sandeep, I don't think so. We will circulate it later on. You can come on to the topic. Yeah. Okay. So that's it. So धन्यवाद आप सभी के लिए, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये सेशन पे अटेंड किया है. एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑर्नामेंट्स, KNC सर्विसेज एंड कामाख्या फॉर देयर initiative in arranging this पाठशाला. And thank you very much. And आपको उसके अलावा भी कुछ अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा email ID and contact number is there. Definitely आप reach out कर सकते हैं, और जो भी help हमारे तरफ से बन पड़ेगी हम आपको देंगे. Thank you very much. Thank you very much. Good. Sumit ji, Manoj ji, you have any questions? नहीं, it's fine. I think so. We have talked a lot of technology के बारे में हमने बात की है, और टेक्नोलॉजी के बिना आज के दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला है. And everything depends on the technology. और हमारे जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी वही अभी दुनिया बनाते हैं. एंड बहुत हमारे स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत सही बात बोली. और सब किसी भी इंडस्ट्री में किसी को भी अगर ग्रो करना है आज के दिन में, और अपनी पकड़ अपने बिजनेस में रखना है, और अगर एम्प्लॉय को भी अगर ग्रो करना है अपने लाइफ में, अपने कंपनी में, तो हर इंसान को अपने आप को टेक्नोलॉजी के तरफ झुकाव लाना पड़ेगा. अपनी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, खुद से ज्यादा से ज्यादा जगह अपने को सीखना पड़ेगा. चाहे वो छोटा एक एक्सेल ही क्यों ना हो, एक टैली हो सॉफ्टवेयर है, या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, आपको सीखना पड़ेगा. आपको अपना एजुकेशन लेवल नहीं देखना पड़ेगा कि आप कितने पढ़े हो, लेकिन हो कि नहीं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के प्रति अपना झुकाव डालना पड़ेगा. आजकल यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है, आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है. और इन सब चीजों के लिए मैं जितने भी यहाँ वर्क फोर्स हैं उनसे एक विनती करूंगा कि आपके अंदर, किसी के अंदर ये डर अगर है कि मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकता, मैं 10वीं पास हूँ या मैं 12वीं पास हूँ, मैं केवल ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो वो आप अपने मन का भ्रम निकाल दीजिए. हिंदी में आप टाइप करेंगे, हिंदी में अच्छे
यूट्यूब पे हर चीज, छोटी सी छोटी चीज का यूट्यूब बना हुआ है, आप उस पे जाएं। अगर आप 1 महीने में अगर ऐसा काम करें, आप हर रोज सुबह उठ के एक आधा घंटा टेक्नोलॉजी सीखने में दें, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, बताता हूँ कि आप अगले ही महीने, अगले 2-3 महीने में अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी के प्रति अपना विश्वास बढ़ाएं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, और उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में टाइप करें, यूट्यूब पे जाएं, जो चीज भी सीखने चाहते हैं, हर चीज का सोल्यूशन आपके दिमाग में कुछ भी आए, और आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ट्यूसडे को हमारी वापस पाठशाला है तेलुगु में, उसका डिटेल में रिक्वेस्ट करूंगा क्रांति जी से मनोज जी, कि मुझे उसके बारे में बताएं, एंड वी कैन एंड द सेशन। I think Ishuji is online and is unmuted himself. आपसे एक सवाल पूछना है बिफोर वी एंड। हमने काफी सेशंस लिए हैं जिसमें हमने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में काफी ट्रेनिंग भी दी है। आपको क्या लगता है कि मतलब एज अनमोल, हाउ मच बिजनेस डू यू थिंक कैन गो ऑनलाइन टुडे एंड इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? So, you know how times teach us things. तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ऑनलाइन ऑफ कोर्स इज वेरी प्रशांत इंपॉर्टेंट। जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिए। हाँ, या शुभ भाई, या सॉरी। हाँ, तो हम खुद ऐसे सोचते थे कि ऑनलाइन के लिए सिर्फ छोटी चीजें चलती हैं और बड़ी चीजें शायद नहीं बिकती हैं, पर हमारे एक्सपीरियंस में हमने बड़ी चीजें भी ऑनलाइन बेची हैं। इट इज रियली सरप्राइजिंग। एक मैं आपको किस्सा, अनफॉर्चुनेटली अगेन डील्स विद शिल्पा शेट्टी। तो कुछ समय पहले हमने एक नेकलेस उनका सोशल मीडिया पे शेयर किया जो उन्होंने पहना था, और वो 20 लाख रुपए का नेकलेस, बांग्लादेश से हमको फोन आया कि हमको ये नेकलेस चाहिए, और वो हमने सेल किया व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप के थ्रू अल्टीमेटली। पहले वो, तो बोलने का मतलब ये है कि जो सोच है हमारी वो हमको बदलनी पड़ेगी। पहले हमको लगता था कि ये डर है कि चीजें कॉपी होंगी, कुछ लोग हैं जो करेंगे, लेकिन फिर आपको अपना मेहनत करके यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड। आप नई क्रिएशंस आपको करते रहनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ऑनलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑनलाइन सेल्स ऑफ कोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी में एक और 2 चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो शायद मिस हो गया यहाँ पर। एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द सेंस, इवन फॉर अ रिटेलर, शेल्फ लाइफ, मतलब एजिंग ऑफ इन्वेंट्री, उन चीजों के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी जो कुछ समय से आ रही है, मिरर, मतलब आप अ क्लाइंट कैन face the camera, and whatever is in your inventory she can virtually try either the earrings or whatever. So even that is a very strong tool. So these are ways technology can help us, but at the same time one has to be careful about how to use the technology. Everything, even a good instrument can be bad if it is not used properly. So that is something we have to keep in mind. Overuse should not happen, abuse should not happen. So things like that are also important. Like if you bombard a client with too many WhatsApp images, she may say, I don't want to come to the store again. Correct. So that, you have to maintain the right balance. Balance is the key. Right balance. Thank you so much, Ishu ji. आप आए, आपने 1 घंटे का टाइम दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. It's a pleasure. I think the audience have really enjoyed your sessions. I can see that in the comments. Thank you so much, Karishma. Thank you so much, Himanshu ji. Manoj ji, would you like to say something? नहीं, इट्स फाइन। बहुत सही बातें बोली है इशू भाई ने एंड हिमांशु भाई ने। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका अडेप्ट करने से ही अपना बिजनेस आगे होगा और बहुत सुकून से और सिंपल वे में कर सकते हैं। और इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से लग्जरी के साथ बताया है इन्होंने। This is a really eye opener. Ishu ji ने कहा कि 20 lakhs का सेट, if you could sell it online, I think this is a very big. इशू भाई ने, एंड रियली आई अप्रिशिएट। थैंक यू भाई। बस छोटा बातें पूछना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है, आपके यहाँ जो स्टाफ हैं, मैं खासकर उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टाफ जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, वो बहुत पुराने स्टाफ हैं,
आपके जो काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, सेलिंग में अच्छा है, सब कुछ में अच्छा है, लेकिन शायद उतना में भी पढ़े लिखे ना हो, एजुकेशन उनका, तो वैसे स्टाफ को, उन लोगों को कैसे आप कॉन्फिडेंस में लाते हैं, कैसे वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव कर सके? बस वो एक मेरा स्टाफ ट्रेनिंग में आपको कैसे, उन लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस में लाते हैं और वो कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं? हाँ, ये ये बहुत ही मैं हंस इसलिए रहा था कि मैं पहले ऐसे समझता था कि जो एजुकेटेड ज्यादा हो और जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो इम्पोर्टेंट है और वो ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए, पर मुझे एक्सपीरियंस ने सिखाया है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको कॉमन सेंस हो, नहीं थोड़ा एटीट्यूड, सॉरी साथ में आप ये भी एड्रेस कीजिएगा कि आपके बाबू भी हैं सर, आपके बाबू भी हैं, कारीगर भी हैं, तो उनको भी कैसे आप अपने साथ सिंक्रोनाइज करते हैं? देखिए, बाबू जो है हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो खुद ही बंगाली है, तो वो उनके साथ बंगाली में ही बात करते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम एकदम वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एज फार एज हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज की बात हो रही है, वहां पर जो माय नेक्स्ट इन कमांड doesn't speak good English, okay, but she's still my next in command क्योंकि उनका एटीट्यूड सही है और कॉमन सेंस, आप बिलीव नहीं करोगे, कॉमन सेंस को हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं, पर कॉमन सेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है। कभी कभी आपके पास कुछ लोग ऐसी समस्या लेके आएंगे जिसका आंसर इज अ नो ब्रेनर, मतलब आप अगर अपने आप से वो सवाल पूछो तो आपको खुद ही आंसर मिल जाना चाहिए, मतलब सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी वो फैकल्टीज यूज नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज्यादा एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जो एटीट्यूड ढूंढता हूं मेरे स्टाफ में इज अ एटीट्यूड ऑफ ओनरशिप, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरी दुकान है, अगर ये कोई ग्राहक चला गया तो ये मुझे बकायदा नुकसान हो रहा है, ये सेल नहीं हुआ, और अगर मैंने कुछ बेचा तो जो खुशी मतलब मैं खुद कमा रहा हूं, ऐसी खुशी मुझे होनी चाहिए। तो एटीट्यूड ऑफ ओनरशिप, एटीट्यूड इज वेरी वेरी की, एंड कॉमन सेंस, ये दो चीजों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूं, इवन मोर देन एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, education, you're educated, you will make more mistakes and be more foolish in English, you'll probably say it in a better way, but it's still a mistake. Absolutely. Thank you so much यशु जी। जी, आप हमारे साथ इतनी देर रहे, और सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप सभी को पता है, हम रीजनल भाषाओं में भी पाठशाला लेके आते हैं, तो पहली बार तेलुगु भाषा में हम इस मंगलवार को 4 बजे आएंगे, तो प्लीज अपने जितने भी तेलुगु ऑडियंस है उनको आप बता दीजिएगा। हर मंगलवार को 4 बजे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच क्रांति जी। आज मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि जूम का वो अपग्रेड नहीं किए हुए थे वर्जन, इसलिए शायद कुछ लोग ज्वाइन काफी नहीं हो सके, तो आप ये बता दीजिए कि आप ये रिकॉर्डिंग हर जगह जो है आप वो इसको रिवील करेंगे। हाँ, अब अपडेट हुआ है जूम आज, और काफी लोगों ने अपडेट कर नहीं पाए थे, मुझे भी मैसेज आया, बट मैं हेल्प नहीं कर पाई। माइन इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड, तो वो हम भेज देंगे मनोज जी सबको। So the recording I will share, मैंने रिकॉर्ड किया है पूरा, मैं शेयर करूंगा। Sure. Thank you Karishma, thank you Prashant. Thank you Yeshu ji, thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Bye Karishma, thank you. Bye.